Hello students, today we are going to study about the system of accounting and objectives and advantages of accounting. In previous lecture, we were trying to understand the basic concepts of accounting and scope branches of accounting. So the next topic is system of accounting. In system of accounting, there are four types of accounting systems. That is, first is single entry system, then double entry system, and another type of classification is cash system and mercantile system of accounting. First, single of entry system. What is mean by the single entry system? Single entry system and incomplete double entry system can be termed as a single entry system. Under this system, the preliminary books of accounting such as cash book, purchase book, sales book, etc. is maintained in the proper way. सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, जितने भी बुक्स है लाइक सच एज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये हमें क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं उसमें इन द प्रॉपर वे. द लेजर इज आल्सो मेंटेन. इसमें लेजर भी आता है सिंगल एंट्री सिस्टम में. बट इन द लेजर ओनली द पर्सनल अकाउंट्स आर open and the posting is made from the original books only in the personal account. In this system, the nominal accounts and real accounts are not open in the ledger. Single entry system में हम nominal accounts और personal account यहाँ पे, real account यहाँ पे open नहीं करते ledger में. In this system, the nominal accounts and real accounts are not open in the ledger. For example, if the rupees 1000 is paid for telephone expenses, then under the single entry system, its entry shall be made in the payment side of cash book. But irrespondingly, no account shall be opened for telephone expenses, which is of a nominal nature. However, if rupees 1000 is paid to Mr. Ram, who is a creditor, then its entry shall be made in the payment side of cash book, and the corresponding entry will be made in the Ram's account, which is of a personal nature. Okay, तो single entry system आपको clear है. Then second is the double entry system. According to this system, every business transaction has a twofold effect. If someone receives something, then either some other person must have given it, or the first mentioned person must have lost something, or some service etc. must have been rendered by him. For example, suppose Mr. A purchased some goods worth rupees 1000 in cash. In this business transaction, Mr. A gets the goods of worth rupees 1000 but lost the cash of rupees 1000. Goods account and cash account shall be affected by this transaction. This in the system, the both aspect of every transaction are recorded in the books of accounts. In fact, the system of accounting is based on the dual aspect concept of accounting. Okay, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया. Then next another type of classification is cash system and mercantile system of accounting. Cash system accounting is the under the system of accounting, all the revenues are recognized when they are received in cash, not when they are earned, and similarly the expenses are recognized when they are paid in cash, not when they are incurred. In the case of above example, if the cash system of accounting is followed, then the rent for only 10 months shall be shown in the profit and loss account. Thus under this system only cash receipts and payments are recorded. तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, ओनली कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. ओनली जितना भी कैश रिसिप्ट्स आपको आते हैं
और जितने भी पेमेंट्स आपने किया हुआ है वो उसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इन द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. देन नेक्स्ट इज द मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसको हम एक्रेल सिस्टम भी बोलते हैं. मर्चेंटाइल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्रेल सिस्टम. This system of accounting is based on the actual concept. In this system, all the revenues are recognized when they are earned, not when are received in cash, and expenses are matched against such revenue, or the expenses should be recognized when they are incurred, not when they are paid. For example, suppose a building is taken on rent for the purpose of business of 1st February. The rent is paid only for 10 months. The financial year ends on 31st December. In such a situation, if a mercantile system of accounting is followed, then the total rent for 11 months should be shown in the profit and loss account, irrespective of the actual amount paid for rent during the year. तो मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये किस में हम शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करेंगे यहाँ पे. तो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम एंड कैश सिस्टम एंड मर्चेंटाइल सिस्टम आपको क्लियर है. और इससे और एक सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग मेथड्स में. दिस इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स सिस्टम. तो इसका नाम ही है मिक्स सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम. तो इसमें क्या आता है, किसका मिक्सचर रहता है. दिस सिस्टम इज मिक्सचर ऑफ कैश सिस्टम एंड मर्चेंटाइल सिस्टम. कैश सिस्टम और मर्चेंटाइल सिस्टम के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ मिक्स सिस्टम. ओके, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है, उसके लिए क्या करना है, अकाउंटिंग यूज़ करना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है. देन नेक्स्ट इज द टू असरटेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस. नेक्स्ट इज टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमें फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना है बिजनेस का. कैसे पता चलेगी बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हमें कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हमें पता चलेगा. अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बिजनेस में कैसी है, प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या लॉस में जा रहा है. द नेक्स्ट इज द टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट बिजनेस असेट्स. हमें क्या करना है, बिजनेस असेट्स को प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है और कंट्रोल करना है. कंट्रोल यानी कि जहाँ पे अगर कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा हमारी क्या हो रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोलिंग करना है. द नेक्स्ट इज द टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द टैक्स अथॉरिटीज. एंड लास्ट वन इज द टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग. हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ज़रूरी है. तो फर्स्ट टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. कैसे करना है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. इट इज़ very difficult to remember all the business transactions that takes place. Accounting serves this purpose of record keeping by promptly recording all the business transaction in the books of account. सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस में जितने भी हो रहे हैं हम सब ध्यान में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते. हमें क्या करना है, वहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है बुक्स में. सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस बुक्स में हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है. तो अकाउंटिंग सर्व्स दिस पर्पज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग बाय प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. Then second is to ascertain the result of operations, that is profit or loss. Accounting helps in ascertaining result, that is profit earned or loss suffered in
business during a particular period. पहले हमने बोला था कि अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखना है बिजनेस का कि कैसी है, प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या लॉस में जा रहा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना है, टू कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. Ascertain the result of operations. For this purpose, a business entity prepares either a trading and profit and loss account or an income and expenditure account which shows the profit or loss of the business by matching the items of revenue and expenditure of the same period. अभी ascertain the result of operations, profit और loss कैसे पता चलेगा, हमें कैसे ascertain करना है, वहाँ पे हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें वहाँ पे बनाना है, ताकि हमें वहाँ पे हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, वो हमें वहाँ पे समझ में आ जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इन एडिशन टू प्रॉफिट, अ बिजनेसमैन मस्ट नो हिज फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज availability of cash, position of assets and liabilities, etc. This helps the businessman to know his financial strength. Financial statements are barometers of health of a business entity. To ascertain the financial position of the business means आपको क्या करना है, ascertain करना है financial position of business कैसी है, कैसे पता चलेगी. Financial position means अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज मीन्स आपको पता लगाना है कि आपके बिजनेस में कैश की कितनी अवेलेबिलिटी है, कैश कितने अवेलेबल है. पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अपने बिजनेस में लाइबिलिटीज कितने हो रहे हैं, खर्चे कितने हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, और असेट्स कितने अवेलेबल है. तो टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको कैसा पता चलेगा, अगर आप रिकॉर्ड रखते हो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हो. Then second is next is the to provide control and protect business assets. According provides up to date information about the various assets that the firm possesses and the liabilities the firm owes, so that nobody can claim a payment which is not due to him. To provide control and protect business assets, हमें क्या करना है, business assets को protect करना है और provide कंट्रोल भी करना है. तो ये कैसे होगा, बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. द नेक्स्ट इज द टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द टैक्स अथॉरिटीज. टैक्स अथॉरिटीज को हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. वो कैसे करोगे आप, बाय कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. अगर आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के, ट्रांजैक्शंस के सब रिकॉर्ड आप रखते हो, तो आपको बाद में एट द फाइनेंशियल ईयर आपको क्या, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है. और टैक्स अथॉरिटीज़ को भी आप क्या कर सकते हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो. आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको रखना है. देन नेक्स्ट इज द टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन making. Accounting records and financial statements provide financial information which help the business in making rational decisions about the steps to be taken in respect of various aspects of business to facilitate rational decision making. अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड रख रहे हो आपके बिजनेस में, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है, आपके बिजनेस में कितना हो रहा है, आपका बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो ही आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग आप अच्छे से कर सकते हो. नहीं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप फर्म नहीं रह सकते हो वहाँ पे डिसीजन. तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, देन सिस्टम अकाउंटिंग क्लियर है. उससे पहले हमने देखा था स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.